کے نام. سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا. سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا. نیو کراچی سیکٹر 11D میں عظیم الشان ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کیا. ماہ رجب، شعبان اور رمضان شریف میں خوب عبادت کرنے کا ذہن دیا. ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا. عظیم الشان ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیات اور تاجر برادری کی شرکت. شخصیات نے سنت و بھرے اجتماع کو سراہا اور اسے اہلیان نیو کراچی کے لیے خوش آئند قرار دیا. ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں اسپیشل پرسنز یعنی گونگے، بہرے، نابینا اور معذور افراد نے بھی شرکت کی. امریکہ، UK، یورپ، فار ایسٹ اور افریقی ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، مقامی عاشقان رسول کی شرکت، تلاوت قرآن پاک و نعت شریف کے بعد مبلغین نے سنت و بھرے بیانات کیے. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کراچی سندھ پاکستان کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 11D کے غوثیہ نورانی عیدگاہ گراؤنڈ میں ہونے والے عظیم الشان ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا احوال، جس میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظ اللہ العالی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے عاشقان رسول کے دلوں کو علم دین کی روشنی سے منور کیا. انہیں ماہ رجب، ماہ شعبان اور رمضان شریف میں عبادت کا ذہن دیا. اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا. تفصیلات اس حوالے سے بتائیں گے محمد امجد قادری اس رپورٹ میں. سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا. سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا. غوثیہ نورانی عیدگاہ گراؤنڈ 11D نیو کراچی میں 8 جنوری 2026 کو عظیم الشان ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگران کراچی مشاورت حاجی فضیل رضا عطاری، نگران ڈویژن مشاورت، نگران ڈسٹرکٹ مشاورت، نگران ٹاؤن مشاورت اور مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں، مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور طلباء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. دل مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدظ اللہ العالی نے عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام سے متعلق سنت و بھرا بیان فرمایا. امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کمالات کی اصل عبادت ہے اور انسان کی اصل عزت بارگاہ الہی میں سر جھکانے ہی میں ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا. ترجمہ کنز ایمان، جسے عزت کی چاہ ہو یعنی خواہش ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عزت چاہے اس کو اللہ کریم کی اطاعت میں طلب کرے، یعنی عزت خدا کی بندگی سے حاصل ہوتی ہے.
खलीफा अमीर सुन्नत ने माह रजब, शाबान और रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने का जहन दिया। खलीफा अमीर सुन्नत ने शरका को सुन्नतों पर अमल करने, इल्म दीन सीखने, नमाज की पाबंदी करने, काफिलों में सफर करने, नेक आमाल करने और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की तरगीब दिलाई। बयान के बाद हफ्तावार इज्तिमा में मामूल के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ाए गए, जिक्रुल्लाह हुआ, जबकि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम भी पेश किया गया। खिदमत के कुदसी कहे आराज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेरा को सलाम। आखिर में हाजी उबैद रजा अत्तारी मदनी मुद्दसिल्लुहुल आली ने उम्मत की खैर ख्वाही, मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ भी करवाई। ए अल्लाह करीम, जो तरह तरह की परेशानी मुब्तला है, ए अल्लाह करीम इनकी परेशानियाँ इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सदक़े में दूर फरमा। ए अल्लाह करीम हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में दूर फरमा। ए अल्लाह करीम रजब शरीफ का वास्ता देते हैं कि अल्लाह करीम इनकी परेशानियाँ दूर फरमा। अज़ीमुश्शान हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात और ताजिर बिरादरी ने भी शिरकत की। शख्सियात ने सुन्नत भरे इज्तिमा को सराहा और इसे अहलियान न्यू कराची के लिए खुशाइन करार दिया। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। न्यू कराची इज्तिमा में मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात और ताजिर बिरादरी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शख्सियात ने इस अजीमुशान सुन्नत भरे इज्तिमा के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और इस तरह के सुन्नत भरे इज्तिमात को मुख्तलिफ इलाकों में करने की ख्वाहिश का इजहार किया। शख्सियात का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि लोगों को किस तरह मज़हब के आम फहम से आगाह करना, उन्हें ऐसी इज्तिमात में उन्हें दावत देना यकीनन बहुत बड़ा काम हुआ है, जिस पर मौलाना इलियास कादरी साहब जो रूह रवा हैं, जो कि अमीर अहले सुन्नत है, मैं उनको ख़ास तौर पे बहुत मुबारकबाद दूंगा। बहुत कुछ सीखने सिखाने का अमल रहा इंशाल्लाह। यहाँ पे अच्छी अच्छी नेतें भी करी और यहाँ से हमने अर्ज़ भी करी कि हम इंशाल्लाह अपनी इस्लाम अल कुरैश से बहुत सारा ऐसे मेम्बरान देंगे जो दावत इस्लामी के काफ़िलों में सफ़र कर सकें, और हफ्तावार इज्तिमा की नीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने की है। इस तरह के इज्तिमा से जो है मैं समझता हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज का जो इज्तिमा मैंने देखा माशाल्लाह, जिस तरीके से लोग आ रहे थे और जिस तरीके से पूरा पिंडाल भरा हुआ था, उससे बाहर भी लोग मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल खलीफा अमीर सुन्नत ने RCD ग्राउंड मलीर सऊदाबाद में हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में भी सुन्नत भरा बयान फरमाया था। गौसिया नूरानी ईदगाह ग्राउंड 11D न्यू कराची में 8 जनवरी को अज़ीमुश्शान हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में अहलियान न्यू कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों से आशिकान रसूल की कसीर तादाद शिरकत के लिए पहुंची, जिनका जोश व जज्बा दीदनी था। वो काफिलों की सूरत में मोटरसाइकिलों, सुजुकियों, बसों और दीगर सवारियों के जरिए इज्तिमा गाह तशरीफ लाए। मज़ीद अहवाल मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। इस्लामी जिंदाबाद, इस्लामी जिंदाबाद। गौसिया नूरानी ईदगाह ग्राउंड 11D न्यू कराची में 8 जनवरी को अजीमुशान हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में आशिकान रसूल की कसीर तादाद सुजुकियों, मोटरसाइकिलों, बसों और दीगर सवारियों के जरिए पहुंची, जबकि कुछ आशिकान रसूल पैदल इज्तिमा गाह की जानिब भी गामजन नजर आए। निगरान का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा की तैयारियां कई दिनों से जारी थी और इसमें शिरकत के लिए मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को दावतें भी पेश की जा रही थी। तकरीबन हमारी 27 मजालिस बनी, हर मजालिस के 3 रुकनी मजालिस बनी और हमने काम डिस्ट्रीब्यूट किया। ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है और बाहर रोडों पर, यानी जो रोड है हमारे तीनों रोडों पर SMD लगी हुई और 2 SMD ऐसी है जहाँ पर कई आशिकान रसूल वहाँ बैठे हैं और वो हफ्तावार इज्तिमा में शामिल है। आशिकान रसूल ने इज्तिमा गाह में खलीफा अमीर अहले सुन्नत मुद्दसिल्लुहुल आली के सुन्नत भरे बयान को सुना और इस पर अमल पैरा होने का अज़्म किया। आशिकान रसूल का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सुन्नत भरे इज्तिमा में बहुत कुछ सीखने को मिला और खलीफा अमीर अहले सुन्नत का बयान पुर असर था। दावत इस्लामी का ये बहुत अच्छा इज्तिमा गया है और बहुत पुरसुकून माहौल और बहुत अच्छी एक्टिविटी रही और बहुत अच्छा निज़ाम रखा गया। नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में और बहुत दीन के अच्छी चीज़ें बहुत बताई गई। इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जो माहौल में नहीं है ना, उनको आने की एक सोबत मिलती है, लाने में आसानी रहती है। बहुत अच्छा था, इसकी बहुत धूमधाम से हुआ है। बहुत यानी कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन कराई जा रही थी एक हफ्ते से,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब इज्तिमा हुआ है। सुन्नत भरे इज्तिमा के इख्तिताम पर आशिकान रसूल मुनज़्ज़म तौर पर घरों को रवाना हुए। हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में उमूमी इस्लामी भाइयों की कसीर तादाद के साथ स्पेशल पर्सनस यानी गूंगे, बहरे, नाबीना और माजूर अफराद ने भी शिरकत की। मज़ीद अहवाल मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। न्यू कराची इज्तिमा में उमूमी इस्लामी भाइयों के साथ साथ स्पेशल पर्सनस यानी गूंगे, बहरे, नाबीना और माजूर अफराद ने भी शिरकत की। दावत इस्लामी के स्पेशल पर्सनस डिपार्टमेंट के तहत स्पेशल पर्सनस के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे, जहां गूंगे बहरे इस्लामी भाइयों के लिए इशारों की जबान में सुन्नतों भरा बयान पेश किया गया, जबकि नाबीना अफराद की उमूमी इस्लामी भाइयों ने रहनुमाई की। इज्तिमा के इख्तिताम पर स्पेशल पर्सनस का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खलीफा अमीर सुन्नत की हमारे इलाके में आमद पर बेहद खुशी हुई। इनके बयानात सुनकर दिल को सुकून मिलता है। यहाँ इज्तिमा में आकर बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले कभी इस तरह का मौका मैसर नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो आया हूँ मुझे बहुत खुशी हुई। इज्तिमा पाक बहुत प्यारा लगा और सबसे बड़ी बात है कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो सजादा हुज़ूर ने कहा है तो इससे हमें दीन में इजाफा हुआ है। मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी के तहत होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमात में स्पेशल पर्सनस के लिए भी इंतजामात किए जाते हैं, जिसमें स्पेशल पर्सनस यानी गूंगे बहरे अफराद के लिए इशारों की जबान में सुन्नत भरा बयान पेश किया जाता है। अगर आपके हल्के अहबाब में ऐसे अफराद हैं तो इन्हें भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल का हिस्सा बनाएं और ढेरों नेकियां कमाएं। हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा के मकाम पर दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहाँ आशिकान रसूल की आमद का सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा, जबकि शोबा रूहानी इलाज की तरफ से तावीज़ात और औराद अत्तारिया भी शुरका को पेश किए गए। मज़ीद अहवाल मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। न्यू कराची में होने वाले हफ्तावार इज्तिमा में आशिकान रसूल के लिए दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें मकतबतुल मदीना, इस्लाह अमाल, मदरसतुल मदीना बालिगान, काफिला, तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा, खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना और दीगर के साथ शोबा रूहानी इलाज का स्टॉल भी लगाया गया, जहाँ शुरका को तावीज़ात और औराद अत्तारिया पेश किए गए। आशिकान रसूल का कहना था कि इसका फ़वाइद बहुत है कि जो घर में बीमार है, कोई परेशानी है, दम किया हुआ पानी पीने से शिफाई कामिला आजला नसीब होगी। इसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी शिफा मिलती है और हर मर्ज से इंशाल्लाह इससे शिफा होता है। मदनी खबरों के नाजरीन, दावत इस्लामी जहाँ दीन के कामों को फैलाने का जरिया बनी हुई है, वहीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम की दुखियारी उम्मत के रूहानी मसाइल को हल करने के लिए तावीज़ात और औराद अत्तारिया भी दिए जाते हैं, जिससे फैज़याब होकर वो अपनी जिंदगी खुशहाल बनाते हैं। कराची के दीगर इलाकों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी दावत इस्लामी के तहत दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत हुए, जिनमें अराकीन शूरा और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। मुल्क भर में होने वाले इन सुन्नत भरे इज्तिमाआत में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, मकामी आशिकान रसूल, दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाइयों, जामिआतुल मदीना और मदारिसुल मदीना के तलबा किराम और असातिज़ा किराम ने भी शिरकत की। सुन्नत भरे इज्तिमाआत में मामूल के मुताबिक दुरूद शरीफ पढ़े गए, ज़िक्रुल्लाह, सलातो सलाम और दुआओं के सिलसिले भी हुए। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी, दीन है सबको सिखाती, दावत इस्लामी, उम्मत की है खैर खाही, दावत इस्लामी, बाअमल हमको है बनाती, दावत इस्लामी, रहमान
की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। यहाँ अब मनासिर दिखाते हैं आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जहाँ दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत हुए। तफसीलात मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा भी है, जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुआ करता है। दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर कायम फैज़ान मदीना समेत दीगर मसाजिद में दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत का इनेकाद किया गया, जिसमें कुर्ब व जवार के मुख्तलिफ इलाकों से बिजनेस कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल शरीक हुए। जबकि तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल के बाद मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए और आशिकान रसूल को सुन्नतों की इत्तिबा और पैरवी में नेकियों भरी जिंदगी गुजारने और गुनाहों से बचने की तरगीब दिलाई। नीज़ ज़िक्रुल्लाह और दुआ के बाद सलातो सलाम के सिलसिले भी हुए। जबकि फैज़ान मदीना, गाजी अंतीब, इस्तांबुल, तुर्किया में अरब आशिकान रसूल के दरमियान होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा में रुकन शुरा हाजी मोहम्मद असद अत्तारी की दीगर जिम्मेदारान की हमरा शिरकत हुई। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आगे बढ़ते हैं, अब खबर देंगे आपको फार ईस्ट के मुल्क साउथ कोरिया से, जहां होने वाले हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान करते हुए नेक आमाल करने और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का ज़हन दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अनवार रज़ा अत्तारी अपनी इस रिपोर्ट में। फार ईस्ट के मुल्क साउथ कोरिया के सिटी किम्हे में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत कायम फैज़ान मदीना में 3 जनवरी 2026 को हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें कुर्ब जवार के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बिजनेस कम्युनिटी के आशिकान रसूल और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से वाबस्ता इस्लामी भाइयों की शिरकत हुई। जबकि जिम्मेदारान और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी भी मौजूद थे। तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल के बाद रुकन शुरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान करते हुए माह रजब के फजाइल बताए। ये तो तौबा का महीना है, ये मगफिरत का महीना है। रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी डालने का महीना है, रमजान फसल काटने का महीना है। ऐसे ही होता है ना, पहले बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर फसल काटते हैं। क्या खूबसूरत बात कहते हैं जो बंदा रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से आबियारी नहीं करता, वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काटेगा? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब बस तैयार हो जाए, रजब के रोजे रखें। ये तो रोजे रखने का, इबादत करने का, दुरूद पढ़ने का, तिलावत करने का महीना। अल्लाह इन महीनों की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। दौरान बयान रुकन शुरा ने नेक अमाल करने, गुनाहों से बचने, रिज़्क़ हलाल कमाने और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहने का ज़हन दिया। नीज़ रुकन शुरा ने दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेते हुए नेकी की दावत की धूमें मचाने की तरगीब भी दिलाई। ये आपकी दावत इस्लामी है, हर सैटरडे को आप आए, 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। फिर मदनी चैनल पर दावत इस्लामी के प्रोग्राम देखते रहे, काफिलों में सफर करें, दावत इस्लामी का साथ भी दें। अभी तो और मरकज बनाने हैं, बच्चों के सेंटर्स बनाने हैं, इस्लामी बैठों के सेंटर बनाने हैं। जो यहाँ साउथ कोरिया में दावत इस्लामी काम कर रही है, अपने ज़कात में, अपने डोनेशन में, अपने अतियात में, बल्कि प्रैक्टिकली भी दावत इस्लामी का साथ दें। माशाल्लाह मैं कई जगहों पर देखता हूँ कि कई नौजवान बढ़ चढ़कर कोई लंगर बना रहा होता है, कोई साथ दे रहा होता है, कोई इंतजाम कर रहा होता है। ये बड़ी कमाल की बात है कि अगर वतन से दूर है और अल्लाह यहाँ हमसे दीन की खिदमत दे रहा है, तो हमें दावत इस्लामी का भरपूर साथ देना चाहिए। इसी दौरान रुकन शुरा ने शुरका इज्तिमा को सिलसिला आलिया कादरी रज़विया तारिया में दाखिल करके शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मुरीद किया और हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा के दौरान मामूल के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ाए गए। जबकि रुकन शुरा ने रिक्कत अंगेज दुआ करवाई और इख्तिताम पर आशिक
आशिकान रसूल के रुकन शुरा से मुलाकात का सिलसिला हुआ। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी दावत इस्लामी के तहत इज्तिमात में शिरकत करते रहिए और अजर व सवाब पाइए। मदनी चैनल के नाज़रीन को अब खबर देते हैं बांग्लादेश के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत के हवाले से, जिनमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद फारूक जिलानी अत्तारी समेत दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के सुन्नत भरे बयानात हुए। मज़ीद जानेंगे अशरफुल इस्लाम अत्तारी की इस रिपोर्ट में। मदनी चैनल के नाजरीन, आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात मुनक़िद किए गए, जहाँ मुख्तलिफ मकामात से सफर करते हुए आशिकान रसूल ने शिरकत की सआदत पाई। जबकि हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ और नातख़्वां इस्लामी भाइयों ने कलाम पढ़े। इसके बाद रुकन शुरा हाजी मोहम्मद फारूक जिलानी अत्तारी समेत दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के सुन्नत भरे बयानात हुए, जिनमें शुरका को गुनाहों से बचने और सुन्नतों की पैरवी में जिंदगी बसर करने का ज़हन दिया गया। नीज़ सुन्नत भरे इज्तिमा में खुद भी शिरकत करते रहने की तरगीब दिलाई गई। इस पर शुरका ने अपने अज़्म का इजहार करते हुए शिरकत करने की नीयतें भी की, जबकि ज़िक्रुल्लाह और दुआ के बाद सलातो सलाम के सिलसिले भी हुए। दावत इस्लामी के शोबे तालीम टीचर्स फोरम के तहत 3 दिन का तहारत कोर्स हुआ, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से टीचर्स ने शिरकत की। शुरका को तहारत, सुन्नतें और आदाब, दीनी कामों की अहमियत और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने का ज़हन दिया गया। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अमजद कादरी अपनी इस रिपोर्ट में। फैज़ान मदीना कराची में 28, 29 और 30 दिसंबर 2025 को दावत इस्लामी के शोबे तालीम टीचर्स फोरम के तहत तहारत कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से टीचर्स ने शिरकत की। जबकि शोबे तालीम टीचर्स फोरम के इस्लामी भाई भी शरीक हुए। 3 दिन के तहारत कोर्स में मुख्तलिफ सेशंस हुए, जिनमें रुकन शुरा व निगरान कराची मुशावरत हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने शुरका की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई की। शुरका को गुस्ल व तहारत के अहकाम, सुन्नतें व आदाब सिखाए गए और दीनी कामों की अहमियत भी बयान की गई। जबकि शुरका को दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। रुकन शुरा हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी ने शुरका की रहनुमाई करते हुए सुन्नत भरा बयान फरमाया। किसी को भी अपने से कमतर नहीं जानना चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में किसका क्या मकाम है, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में माल से मकाम नहीं बनता, पैसों से मकाम नहीं बनता, ओहदों से मकाम नहीं बनता, कद से मकाम नहीं बनता, सेहत से मकाम नहीं बनता, या बहुत किसी की अप्रोच हो, बहुत बड़ा विजनरी हो, तो इससे अल्लाह की बारगाह में मकाम नहीं बनता। बल्कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। शोबे तालीम टीचर्स फोरम के जिम्मेदारान ने टीचर्स के दरमियान दीनी कामों की अहमियत और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने का ज़हन दिया। इनका मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तहारत के बेसिक्स जो फंडामेंटल्स थे, बेसिक्स जो बुनियादी चीज़ें थी, नमाजों के फ़राइज़ और वाजिबात के हवाले से तरबियत का सिलसिला रहा। अरकान शुरा की आमद भी होती रही, साथ साथ जो है वो आशिकान रसूल की तरबियत फरमाई। 3 दिन के तहारत कोर्स में शिरकत करने वाले टीचर्स का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था, तहारत के जो बेसिक मसाइल हैं वो मसाइल हमें सीखने का मौका मिला। जो डायमेंशंस थे खासकर तहारा के, उस हवाले से रुशनासी में अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुई। तहारत कोर्स के इख्तिताम पर रुकन शुरा व निगरान कराची मुशावरत हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी ने टीचर्स को असनाद व ताइफ भी पेश किए। दावत इस्लामी के शोबा हज उम्रा के तहत 26, 27 और 28 दिसंबर 2025 को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उम्रा तरबियती कोर्सेज मुनाकिद किए गए, जिनमें मुआविन निगरान मजलिस पाकिस्तान ने ज़ायरीन की रहनुमाई की। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद, मदीनतुल औलिया मुल्तान और गुजरांवाला में 26, 27 और 28 दिसंबर 2025 को शोबा हज उम्रा के तहत उम्रा तरबियती कोर्स मुनक़िद किए गए, जिनमें उम्रा अदायगी के लिए जाने वाले आशिकान रसूल और दीगर ने भी शिरकत की। मुआविन निगरान मजलिस पाकिस्तान ने ज़ायरीन को उम्रे का तरीका बयान किया और ज़रूरी मसाइल के हवाले से रहनुमाई की। मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के आदाब भी बयान किए और दौरान हज उम्रा की जाने वाली गलतियों की निशानदही भी की। अपने नाज़रीन को खुशी की खबर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत 24 दिसंबर 2025 को लसबेला बलूचिस्तान पाकिस्तान के इलाके काठोर में फैज़ान इमाम बाक़िर मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया, जिसमें निगरान डिस्ट्रिक्ट मुशावरत लसबेला, शोबा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना के डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार और मकामी शख्सियात भी मौजूद थीं। निगरान डिस्ट्रिक्ट मुशावरत लसबेला ने शख्सियात के हमरा मस्जिद की तामीरात के लिए संग बुनियाद रखा और इसकी जल्द तामीर के लिए दुआ करवाते हुए शुरका को तामीराती कामों में भरपूर ताउन की तरगीब दिलाई।
शोबा तालीम इस्लामी बहनों के तहत 31 दिसंबर 2025 को टेक्सला पंजाब में एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें तालिबात और प्रोफेशनल इस्लामी बहनों ने शिरकत की। सेशन में जिन्नात और जादू से मुतालिक कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त अकायद और मालूमात से आगाही दी, नीज रूहानी इलाज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से भी रहनुमाई की गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के शोबा तालीम इस्लामी बहनों के तहत 31 दिसंबर 2025 को पंजाब के शहर टेक्सला में एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबे से वाबस्ता इस्लामी बहनों समेत प्रोफेशनल्स और तालिबात ने भी शिरकत की। सेशन में कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिन्नात और जादू के हवाले से दुरुस्त मालूमात फराहम की गई, नीज रूहानी इलाज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से भी रहनुमाई की गई। प्रोफेशनल्स और तालिबात ने सेशन को निहायत मुफीद करार दिया और शोबा तालीम की इस काविश को सराहते हुए ऐसे सेशंस को जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया और अपने शब रोज को नेक अमाल के मुताबिक गुजारने के साथ इल्म दीन हासिल करने की अच्छी नीयतों का इजहार किया। शोबा तालीम इस्लामी बहनों के तहत कोटली कश्मीर में 30 दिसंबर 2025 को निजी अस्पताल में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें जिम्मेदार इस्लामी बहन ने नेकी की दावत दी और शोबा तालीम की दीनी खिदमत से आगाह किया और इन्हें अपनी सलाहियतों को मुस्बत और दीनी कामों में इस्तेमाल करने की तरगीब दी। देखिए ये रिपोर्ट। 30 दिसंबर 2025 को दावत इस्लामी के शोबा तालीम इस्लामी बहनों के तहत कोटली कश्मीर में वाक़ई एक निजी अस्पताल में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें जिम्मेदार इस्लामी बहन ने नेकी की दावत देते हुए शोबे का तारुफ पेश किया और तालीमी इदारों समेत अस्पतालों में होने वाले दीनी कामों से आगाह किया। जिम्मेदार इस्लामी बहन ने प्रोफेशनल इस्लामी बहनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असल ताकत अल्लाह की अता करदा है और इंसान को अपनी सलाहियतों को दीनों दुनिया की बेहतरी के लिए मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौके पर प्रोफेशनल इस्लामी बहनों ने दावत इस्लामी की दीनी खिदमत को सराहा और नेकी के कामों में शोबा तालीम के साथ मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी कराई और अच्छी नीयतों का इजहार किया। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी न्यूज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 9 जनवरी के नेक अमाल का जायज़ा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया